کہ ہمارا عربی لینگویج کورس چل رہا ہے اور جس میں بنیادی قواعد و ضوابط یہ اپنے اختتام کو ہیں. ان بنیادی قواعد و ضوابط میں سے اختتامی جو بحث ہے ہماری وہ ہے کون سے اسماء متمکنہ تو پڑھ لیے تھے نا, اور غیر منصرف وغیرہ کی بحث بھی مکمل ہو گئی تھی. تو آخری بحث ہے کون سی اسماء غیر متمکنہ کی. ٹھیک ہے, اسماء غیر متمکنہ کے بعد ایک دو چھوٹی سی چیزیں ہوگی وہ آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گے, ان کا بھی تعلق تھوڑا سا اعراب سے. اچھا, اسماء متمکنہ کا تعلق تو تھا اعراب سے, اس میں تو یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو بھی یعنی کون سا کلمہ مرفوع ہوگا, کون سا منصوب ہوگا, کون سا مجرور ہوگا, کیا اعراب ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ والا جو ہے اسماء غیر متمکنہ, اسماء متمکنہ کیا تھا کہ بھئی جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. اسماء متمکنہ کی تو یہ تعریف تھی. اسماء غیر متمکنہ کی اس کے الٹ تعریف ہے, یعنی مبنی الاصل کے مشابہ ہو. ٹھیک ہے, اور معرب اور مبنی جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس وقت آپ لوگوں کو بتا دیا تھا مبنی کے بارے میں کہ مبنی جو لفظ مطلب جس وقت ایجاد ہوا, ایجاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت سے وہ لفظ بولا جا رہا ہے اس کے اوپر جو اعراب ہے وہی اعراب برقرار ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہاؤلائی کے نیچے, ہاؤلائی کے اعراب حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہی اعراب اس کا برقرار رہے گا. مبنی کے اندر بس یہ ہوتا ہے. تو یہ جو 10 اقسام ہیں اس میں سے کچھ جو ہے نا اقسام ہم لوگ پڑھیں گے, اور جو ہے نا کچھ اقسام کے جو ہے نا حروف آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیے جائیں گے. تو ان کا جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا کہ بھئی حالت رفیع و نصبی و جری اور ان کا اعراب وہی رہے گا, ان کا اعراب نہیں تبدیل ہوگا. حالت رفیع ایسے نہیں ہوگا کہ حالت رفیع میں ان کو مرفوع, حالت نصبی میں منصوب, حالت جری مجرور, نہیں, بلکہ یہ مبنیات میں سے ہیں. تو مبنیات کا اعراب جو لفظ کا اعراب ہے وہی رہے گا, پیچھے اس کا عامل عمل کرنے والا جو فعل ہے یا جو بھی چیز ہے وہ جو مرضی جس چیز کا مرضی تقاضا کر رہا ہو. جیسے با زیر کا تقاضا کرتی ہے, اگر اس مبنی کے لفظ کے اوپر پیش ہے تو ادھر پیش ہی لگے گا, زیر نہیں لگے گی. صحیح ہے, تو یہ مبنیات کیا ہے کہ بھئی جو اعراب ان کے اندر ہے مطلب لکھا ہوا وہی اعراب جو ہے نا برقرار رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو 10 اقسام ہیں یہ اسی کے اندر ہے. تو ان 10 اقسام میں سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے نا یہ گنوا دیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جو پڑھنی ہے وہ کون کون سے پڑھنی ہے. ضمیر سے بحث کرنی ہے, لیکن ضمیر سے بحث تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ ضمیر کی 5 اقسام ہیں, ان 5 اقسام سے بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو 5 اقسام ہیں اور ہر قسم کے اندر 2 قسمیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے کچھ زیادہ اقسام بن جاتی ہیں, تو اس کی جو ہے نا مستقل طور پر الگ بحث پڑھیں گے ابھی اس کی. اور اسی طریقے سے اسماء اشارات مکمل 12 کے 12 اسماء اشارات, 6 قریب کے 6 بعید کے مستقل طور پر اب الگ پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اسماء موصولات. ٹھیک ہے, اسماء موصولات کو جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس میں موصول کس کے اندر, وہ معرفہ اور نکرہ کی جب ہم لوگ بحث پڑھ رہے تھے تو معرفہ کے اقسام میں ایک اس میں موصول پڑھا تھا. تو یہی اس میں موصول کی تھوڑی سی زیادہ تفصیل آ جائے گی. اب اس کے اندر آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی ادھر تو ہم نے الذی اس میں موصول پڑھا تھا نا, تو ادھر کچھ زیادہ اس میں موصول, اور سب کے بارے میں پتہ لگ جائے گا کہ کون سا اس میں موصول جو ہے نا مفرد کے ساتھ استعمال ہوگا, کون سا تثنیہ کے ساتھ اور کون سا جمع کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسماء موصولات کے بعد جو ہے نا کچھ اسماء افعال ہیں اور اسماء شرط, اور اسی طریقے سے ظروف مبنیہ اور اسماء استفہام ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو ہے نا حروف بس آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیے جائیں گے, بس وہ حروف آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. صحیح ہے, تو جو ہے نا اب میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا کیا آپ لوگوں کو حروف لکھ کر دیتا ہوں. صحیح ہے, ضمیر اور اسماء اشارات کی تو بحث مستقل ہے نا, تو اس کو ہم لوگ آخر میں پڑھیں گے. تو پہلے حروف کی بحث کو ہم جو ہے نا مکمل کر لیتے ہیں, یعنی جو جو حروف ہیں وہ آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں, تو ان کو جو ہے نا آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لو. صحیح ہے, تو اب ان 10 اقسام میں سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے نا جو حروف کچھ لکھنے ہیں ان میں سب سے پہلے جو ہے نا ظروف مبنیہ ہم لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظروف مبنیہ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ حروف لکھ کر دوں گا, کچھ حروف وقت پر دلالت کریں گے, کچھ حروف جگہ پر دلالت کریں گے. جو حروف وقت پر دلالت کریں ان کو ظرف زمان کہہ دیں گے, جو حروف جگہ پر دلالت کریں ان کو ظرف مکان کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ظروف مبنیہ کے جو حروف ہیں وہ دیکھ لو آپ. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی ظروف مبنیہ. ٹھیک ہے, اب وہ دیکھ لو. نمبر 1 قبلو, اور اسی طریقے سے بعدو,
इज़ा इज़ अयना अन्ना मता अय्याना क़ब्लु बादु हैसु इज़ा इज़ अयना अन्ना मता अय्याना मुंज़ु मुज़ लदा लदुन और इसके बाद जो है ना कत्तु और आखिरी है औज़ु। ठीक है, तो अब कबलू पहले, बादू बाद, हैसु जब भी, यानी हैसु इस तौर पर के मुख्तलिफ इसके माने इस्तेमाल होते हैं। जैसे हैसु का मतलब आप फिलहाल ये ध्यान में रखें इस तौर पर के। अच्छा, इज़ा जब, इस जब, अयना कहाँ, अन्ना कौन, ठीक है, मता कब, अय्याना ये भी कहाँ, मुंजु से, मुझ से, लदा करीब के लिए आता है, ठीक है, या लदैया जैसे मेरे पास है, और लदुन ये भी जरा करीब के लिए आता है, कत्तु कभी भी, सही है। तो इसी तरीके से ये औज़ु। तो अब ये ना कितने हुरूफ हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हुरूफ है, सही है। तो बस अब आप लोगों ने ये ज़ुरूफ मबनिया कितने हैं जी, कुल 15 हैं। कौन कौन से हैं, क़ब्लु बादु हैसु इज़ा इज़ अयना अन्ना मता अय्याना मुंज़ु मुज़ लदा लदुन कत्तु औज़ु, और इसके अलावा भी है, बल्कि औज़ु अमसी, वो मेरे ज़हन से निकल गए हैं। अच्छा जी, अमसी, अल आना और लम्मा, सोलह 17 और ये 18। तो ये है 18 हुरूफ, सही है। अमसी का मतलब गुज़िश्ता कल, और अल आना अभी, ठीक है, और लम्मा जब भी, सही है। तो लम्मा तज़हब अज़हब, यानी जब तुम जाओगे मैं जाऊंगा, इसी तरीके से लम्मा का ये मतलब है। अच्छा, बहरहाल ये जो ज़ुरूफ मबनिया कितने हैं, कुल 18 है। अब ये आप लोगों ने याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, क़ब्लु बादु हैसु इज़ा इज़ अयना अन्ना मता अय्याना मुंज़ु मुज़ लदा लदुन कत्तु औज़ु अमसी अल आना और लम्मा, सही है। तो ये 18 हुरूफ हैं ज़ुरूफ मबनिया। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं। इनके ऊपर जो एराब है इनके आखिरी हरफ पर वही रहेगा, ठीक है, तब्दील नहीं होगा। तो ये कौन से हुरूफ है, ज़ुरूफ मबनिया। बाज़ इनमें से वक़्त पर दलालत करेंगे, बाज़ जगह पर दलालत करेंगे। जो वक़्त पर दलालत करे उसको क्या कहते हैं, ज़र्फ़े ज़मान, जो जगह पर दलालत करे उसे क्या कहते हैं, ज़र्फ़े मकान, सही है। अच्छा जी, अब इस जगह में आप लोगों को लिख कर देता हूँ क्या, ज़ुरूफ मबनिया के बाद कौन से, अस्माए इस्तिफ़हाम, ठीक है, वो भी कुछ हुरूफ है, तकरीबन 10-12 वो भी हुरूफ है। तो वो मैं आप लोगों को वो भी लिख कर दे देता हूँ। तो ये देखो, अस्माए इस्तिफ़हाम। अच्छा, ये कौन कौन से, ये मन मा माज़ा कम अय्यम, नंबर 1 मन मा माज़ा कम अय्युन, और उसके बाद जो है ना अयना अन्ना मता अय्याना कैफा, अयना
अन्ना, मता, अय्याना और कैफा। तो ये कितने हुरूफ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हुरूफ हैं। ये कुल अस्माए इस्तिफहाम कितने जी? 10। कौन कौन से? मन, मा, माजा, कम, अय्युब। और ये वाले 5 तो वही है इसमें से जो तकरीबन ऊपर आए हुए हैं। अयना, अन्ना और ये देखो मता, अय्याना और ये आखिरी ज़ायदा बस कैफा। ठीक है, तो 4 हुरूफ इसके अंदर मौजूद है। मन कौन कौन से? मन, मा, माजा, कम और अय्युब। और इसके बाद अयना, अन्ना, मता, अय्याना 4 ऊपर वाले और एक ज़ायदा कौन सा? कैफा। सही है, तो ये हुरूफ का भी वही तरतीब है, मतलब इनके ऊपर जो एराब आखिर में है वही एराब रहेगा। ठीक है, जैसे जा, हा, उला, ई है ना, तो उधर हमजा के नीचे जेर है, जैसे जेर ही रहता है, चाहे जा लगा लो, चाहे पीछे राई तो लगा लो, चाहे मररतु भी का लफ्ज लगा लो, लेकिन हा उला ई ही रहेगा। तो इसी तरीके से ये भी इसी तरीके से रहेंगे, जो इनका एराब आखिर में साकिन तो साकिन, ज़बर है तो ज़बर, ज़ेर है तो ज़ेर, जो भी एराब है। क्यों? ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसमें गैर मुतमक्किना जितने भी वो सारे के सारे मबनी। सही है, अच्छा जी, तो यहाँ पर तो हो गई हमारे ज़ुरूफ़ मबनी और अस्माए इस्तिफ़हाम मुकम्मल। अच्छा जी, ये हुरूफ थे बस, इसके अलावा बाकी तकरीबन कोई नहीं है। हाँ, बस यही थे। तो इसके अलावा बाकी हैं चीज़ें, बस उनका फिर इसके अरबी बोलचाल के साथ जो है इतना ताल्लुक नहीं है ख़ास। बस ये अल्फाज अक्सर तकरीबन असल में अरबी बोलचाल जब हम शुरू करेंगे ना, तो उस वक्त ये अक्सर अल्फाज जो है ना आते रहेंगे। सही है, तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को कुछ हुरूफ है, कितने 18 और 10 28 हुरूफ है बस ये। तो ये आप लोगों ने सिर्फ याद रखने हैं, आसान से है। सही है, तो ऊपर वाले 18 कौन कौन से हैं? क़ब्ल, बाद, हैसी, जाइज़, ऐन, अन्ना, मता, अय्याना, मुंज़, मुज़, लदा, लदम, कत्तो, उज़, अमसी, अलाना, लम्मा। और मन, मा, माज़ा, कम, अय्युन, ऐन, अन्ना, मता, अय्याना और कैफा। सही है, अभी अय्युन जो है ना, अय्युन ये मुज़क्कर के लिए और अय्यतुन मुअन्नस के लिए, ये दोनों मतलब लफ्ज इस्तेमाल होते रहते हैं, कभी अय्युन कभी अय्यतुन। ठीक है, मुज़क्कर अगर आगे लफ्ज मज़कूर होगा तो अय्युन इस्तेमाल कर लेंगे, और अगर मुअन्नस होगा तो अय्यतुन इस्तेमाल कर लेंगे। बस ये खैर 28 हुरूफ है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब जो हम लोगों ने असल पढ़ना है वो कौन कौन से यानी मबनियात, अस्माए मुतमक्किना और अस्माए गैर मुतमक्किना है। देखिए, तो अस्माए गैर मुतमक्किना के अंदर असल जो हमारी बात चलनी है वो किसके साथ चलनी है? ज़माए, अस्माए इशारात और अस्माए मौसूलात के साथ। सही है, तो अब जो है इसके बाद मैं आप लोगों को अब ये पढ़ाता हूँ, कौन सा? ज़मायर के बारे में जाना शुरू करते हैं, या बल्कि ज़मायर से पहले उसका अस्माए मौसूलात के बारे में शुरू कर देते हैं, फिर अस्माए इशारात, फिर एंड में ज़मायर पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो अब अस्माए मौसूलात के जो है ना थोड़ी सी तफसील देख लो। तो अब वो मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर अस्माए मौसूलात लिख कर दे देता हूँ। अस्माए मौसूलात, नंबर 1 अल्लज़ी और अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लज़ीन और अल्लज़ीना। ठीक है, और इसके बाद अल्लाई, अल्लाई, अल्लवाती, अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लज़ीनी, अल्लज़ीना, अल्उला, अल्लाई, अल्लाई, अल्लाही, अल्लावाती, अल्लाई, अल्लाही, अल्लावाती, और इसके बाद मन, मा,
बस ये है। अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी और इधर मुअन्नस के तो नहीं लिखे ना। हाँ एक मिनट, 2 मिस हो गए यहाँ पर। और अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लतानी और अल्लतैनी और अल्लज़ीना। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर जो है ना ये देख लो, इन सारों का मतलब तकरीबन बस यही होता है कि वो या जो, वो या जो। अल्लज़ी भाई, जा अल्लज़ी नसरा, आया मेरे पास अल्लज़ी वो कि जिसने मदद की। ठीक है, या जा अल्लती नसरत, आई मेरे पास वो। ठीक है, या जाअत, सॉरी जा अल्लती नहीं, जाअत अल्लती नसरत, तो आई मेरे पास वो जिसने मदद की। ठीक है, तो इस तरीके जा अल्लज़ान यानी जा अल्लज़ानी क्या नसर, जा अल्लज़ानी नसरा, सही है, आए मेरे पास वो दो कि जिन्होंने मदद की। और इसी तरीके से जा अल्लज़ानी मतलब ये फिर अल्लज़ैनी हालत नस्बी में इस्तेमाल हो जाता है। अच्छा जी, जा अतिल्लतानी, ठीक है, जा अतिल्लतानी नसरता, आई मेरे पास वो दो जिन्होंने मदद की। ठीक है, सारी देखो ना, आप नोट करो, सारे के अंदर मैं तर्जुमा क्या कर रहा हूँ, वो या जो के साथ। तो इनका तर्जुमा अस्माए मौसूला जितने भी हुरूफ लिख कर दिए हैं सारे का तर्जुमा तो आप लोगों को पता है ना, यानी वो या जो के साथ। सही है, तो ये हो गई हमारे लिए आसान। अच्छा, लेकिन बस इसके अंदर अस्माए मौसूलात के अंदर फिर समझने वाली चीज क्या है, वो एक है, वो ये है कि जितने भी हुरूफ लिखे होंगे ना, इनमें से कौन सा मुज़क्कर यानी कौन सा मुफरद के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा तस्निया के लिए इस्तेमाल होगा, कौन सा जमा के लिए इस्तेमाल होगा। आप कभी यूं कहेंगे भाई आया मेरे पास वो एक मर्द के जिसने मदद की, कभी आपको यूं कहना पड़ेगा कि भाई आए मेरे पास वो दो मर्द के जिन्होंने मदद की, आए मेरे पास वो दो मर्द के जिन्होंने मदद की। सही है। अच्छा जी देखो, तो इसलिए वो दो मर्द या वो सब मर्द, तो ये आने वाले या तो औरत होगी या मर्द होगा। ठीक है, अब उनकी फिर तादाद के अंदर इख्तिलाफ हो गया, या तो एक आएगा या दो या कई सारे आएंगे, तो इसीलिए फिर उसकी वजह से जो है इसके हुरूफ मुख्तलिफ है। अब बिल्कुल आसान सी बात है कि ये अब अल्लज़ी जो है ना, ये है मुफरद मुज़क्कर, मुफरद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी इस्तेमाल होगा, और अल्लती मुफरद मुअन्नस। ठीक है। अच्छा जी, अल्लज़ानी, अल्लज़ैनी तस्निया मुज़क्कर, और अल्लतानी, अल्लतैनी दोनों के दोनों तस्निया मुअन्नस। ठीक है, और अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर, और ये सारे जमा मुअन्नस। सही है। अच्छा जी, अब मन, मा, अय्यन और अय्यन चारों के अंदर थोड़ी थोड़ी सी तफसील है। अब मन ये जो है ना, मन का इस्तेमाल जो है क्या कह रहे हैं कि भाई, अच्छा जी, मन का इस्तेमाल ये आकिल के लिए होता है। और माँ का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद अल का इस्तेमाल, अल का इस्तेमाल के और इसी तरीके से इन दोनों के इस्तेमाल एक जैसे है, मन और मा के, और अल और अय्युन के इस्तेमाल एक जैसे हैं। अच्छा जी, अल का इस्तेमाल क्या है, ये मुफरद
तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस आकिल और गैर आकिल सब के लिए होता है। बस। और अय्युन क्या, अय्यतुन, इनका इस्तेमाल की भी यही करती है। सही है, ये हो गई बस हमारी अस्माए मौसूलात की बहस यहाँ पर मुकम्मल। कि अब मैंने हुरूफ आप लोगों को लिख कर दे दिए, उसके बाद जो है ना मैंने बता दिया कि कौन सा किसके लिए इस्तेमाल होगा, अल्लज़ी मुफरद मुज़क्कर के लिए और अल्लती मुफरद मुअन्नस के लिए, अल्लज़ानी अल्लज़ीनी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अल्लतानी अल्लतैनी तस्निया मुअन्नस के लिए, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए, और उसके बाद अल्लाही 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 अल्लावाती मन, और यानी अल्लाही अल्लाही अल्लावाती और अल-उला, और इसी तरीके से अल्लाही। एक कम है लेकिन कोई नहीं, बस उसकी जरूरत जितने लिखे आप ये याद कर लो। अच्छा जी, ये जो है ना खैर जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा, चाहे जमा मुअन्नस के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये, सब में बात दुरुस्त होगी। सही है, चाहे इनमें से आप, मैंने तो 4 लिख कर दे दिए, चाहे आप सिर्फ एक याद कर लो इसमें से, ठीक है। और यानी चाहे अल्लाही अल्लावाती या अल-उला, जो मर्जी आपका दिल करे वो याद कर लो। सही है, तो चाहे एक ज़हन में रख लो। अच्छा खैर, फिर 4 और अस्माए मौसूलात थे, मन, मा, अय्युन और अल, ठीक है। अच्छा जी, मन मा के बता दिया तफसील के भाई मन ये आकिल के लिए इस्तेमाल होता है और मा ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। आकिल और गैर आकिल की बात शुरू में आप लोग पढ़ चुके हैं। सही है, आकिल और गैर आकिल की बात क्या है कि भाई आकिल किसको कहते हैं, अकल रखने वाला है, यानी कि जिसके अंदर अकल हो, और गैर आकिल जिसके अंदर अकल ना हो। ठीक है, अब इधर एक जैद खड़ा है, जैद आकिल शख्स है, उसके अंदर अकल है। ठीक है, अब मेरे पास अब ये देखो, ये जैसे बोर्ड है, अब ये क्या है, ये आकिल है, ये गैर आकिल, गैर आकिल है, इसके अंदर अकल है नहीं, तो आकिल इसको कहते हैं जिसके अंदर अकल, और गैर आकिल किसे कहते हैं जिसमें अकल ना हो। अच्छा, मन का इस्तेमाल आकिल के लिए होगा और माँ का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए होगा। ठीक है, जैसे आप यूं कह दो कि अब मैं कहता हूँ कि जैसे मेरे सामने जैद खड़ा है, अब मैंने किसी से पूछना है कि भाई ये कौन है। ठीक है, अब मन और माँ इन दोनों का तर्जुमा कौन के लिए, यानी कौन के एतबार से भी हो सकता है, लेकिन इन मन और माँ का इस्तेमाल बता रहा हूँ। वैसे इन मन और माँ का तर्जुमा जो है ना वो या जो के एतबार से होगा, लेकिन कौन के एतबार से भी, यानी कौन का तर्जुमा भी इनके साथ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, वो तो इस्तिफहाम के अंदर फिर इसका तर्जुमा हो जाएगा ना। अब जैसे खैर आप ये उस बात को छोड़ो, असल जो है ना मुद्दे पे आते हैं कि भाई अब यहाँ पर जैद खड़ा है, मैंने पूछना है कि ये कौन है, तो अब मैं उसके लिए मन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, माँ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी मैं ये पूछूंगा कि मन अंता या मन हाजा या मन हुआ, ठीक है, या मन जाका, कुछ भी कह लो। सही है, तो जो है ना मैं ये मन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैद खड़ा है और मैं कह दूँ कि भाई माँ हाजा। माँ का इस्तेमाल गैर आकिल चीज़ों के लिए होगा और मन का इस्तेमाल आकिल के लिए होगा। ठीक है, अगर मेरे सामने किताब पढ़ी है, सही है, मैं किसी पूछता हूँ कि भाई माँ हाजा, या उसके सामने किताब पढ़ी, मैं पूछता हूँ माँ हाजा, सही है, या माँ जाका वो क्या है, तो उस जगह पर माँ इस्तेमाल करूँगा जहाँ पर गैर आकिल होगा। लेकिन जहाँ पर आकिल है, जैद के बारे में पूछना है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मन। ये बात आसान है बिल्कुल, इसको ध्यान में रख लो। सही है, तो मन का इस्तेमाल आकिल के लिए और माँ का इस्तेमाल गैर आकिल के लिए। अल अय्युन और अय्यदुन, इनका इस्तेमाल उमूम के साथ है, यानी चाहे लफ्ज़ मुफरद। अच्छा, इसके अंदर एक और बात है, मन और माँ के अंदर आकिल और गैर आकिल के लिए तो इस्तेमाल होंगे, लेकिन आकिल और गैर आकिल चाहे मुफरद हो, चाहे तस्निया हो, चाहे जमा हो, चाहे मुज़क्कर हो, चाहे मुअन्नस हो, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसके अंदर बस एक अलग बात थी कि भाई आकिल और गैर आकिल की वक्त सिर्फ वो लिख दी है, बाकी ये मुफरद तस्निया जमा हो, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, सब के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, मनिल लज़ैनी, मनिल लज़ी, ठीक है, मनिल लज़ैनी या मनिल लती, और मनिल लज़ानी या मनिल लतानी, मनिल लतैनी, मनिल लज़ीना और मनिल लवाती। ठीक है, तो ये इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, अच्छा जी, खैर ये आखिरी वाले जो दो है ना, अय्युन और अय्यतुन और अल, अय्युन मुज़क्कर के लिए, अय्यतुन मुअन्नस के लिए, और ये अल, असल तो दो है, अय्युन और अल।
اب یہ جو ہے نا مفرد ہو، تسمیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، عاقل ہو، غیر عاقل ہو، سب کے لیے استعمال ہے۔ آسان ہو گئی چیز؟ اچھا جی، اس کے اندر بس ایک چھوٹی سی بحث اور ہے، وہ کیا ہے کہ ال کے استعمال کی جو ہے شرط بتا رہے ہیں، ال کے استعمال کی شرط بتا رہے ہیں۔ وہ کیا کہ ال جو ہے نا اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے۔ ال اس میں فاعل یعنی اسماء موصولات کے اندر اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر داخل ہوتا ہے، لیکن آپ جو ہے نا فی الحال ال کی باس کو جو ہے نا یہ اسکپ کر دو، یعنی ال کی باس جب ہم آگے دیکھیں گے، جب وہ افعال ہم پڑھیں گے نا، اسماء اس میں فاعل اس میں مفعول اور اسی طریقے سے ماضی وغیرہ کی گردانے، تو یہ جو ہے نا اس وقت آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ بھئی اس میں فاعل یا اس میں مفعول کیا ہوتا ہے، تو اس پر یہ ال داخل ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اچھا لیکن خیر اب یہاں پر آپ لوگوں نے جو ذہن میں رکھنے والی چیز ہے وہ کیا ہے کہ من کس کے لیے استعمال ہوگا؟ عاقل کے لیے، مفرد تسمیہ جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، جو مرضی ہو۔ ماں غیر عاقل کے لیے۔ اچھا جی، ایون مفرد تسمیہ جمع مذکر مؤنث عاقل غیر عاقل سب کے لیے، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو یہ ہو گئی ہماری بات یہاں پر مکمل، صحیح ہے۔ تو بس اس کے اندر آپ لوگوں نے یہ حروف یاد کرنے اور ان کے استعمال یاد کرنا ہے کہ کون کس کے ساتھ استعمال ہوگا، بس یہ جو ہے نا کیا ہے اسماء موصولات کے اندر یہ بس چھوٹی سی بات ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، باقی رہ گئی اب ہماری صرف دو باتیں اور اس کے بعد ہمارے قواعد و ضوابط ختم۔ دو باتوں کے بعد ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کو بتا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے قواعد و ضوابط ختم۔ وہ دو باتیں کون کون سی ہیں؟ اسماء اشارات اور ضمائر، ٹھیک ہے۔ تو اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اسماء اشارات وغیرہ سے بحث کریں گے، تو پھر ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔